Hello, 4th standard students. Welcome back to our maths period. Before we start, I want to talk with you that about your homeworks. Very few students are sending me the homeworks. What about the others? Why don't you do your homework? Please do it, practice it. If you have any difficulty, call me. Okay? Now, today we are going to start our lesson, remaining lesson, that is fraction. What is the lesson's name? That is fraction. We already studied this one, the meaning of the fraction, reading and writing the fractions. Okay? After that we studied the different meanings of the fractions. Okay? After that we solved this one. Remember? No? And then mixed fractions we also learned. Okay? Now we are going to study here comparing the fraction. Okay, what we are going to study here? Comparing the fraction. Okay, in the picture given below, each of the strips of equal length has some shaded parts. Okay, write the fraction shown by the shaded part of each strip in the box next to it. Okay, look here, these strips, 5 strips are given here and all strips are equal length. Okay, and some parts of these strips are shaded. So write down the fraction. Look at this first one. First one, what? There are 2 parts. The strips has 2 parts. Out of 2 parts, 1 part is colored. Okay, next strip, 1, 2, 3. 3 parts are there and 1 part is colored. Next strip, 1, 2, 3, 4. Out of 4 part, 1 part is colored. Next, 1, 2, 3, 4, 5. Out of 5 part, 1 part is colored. And here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of 6 part, 1 part is colored. This is called the fraction. Okay, स्ट्रिप इक्वल लेंथ ही है, हाँ, लेकिन हम लोग अगर उसके अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो फ्रैक्शन मिलता है. सो टेल मी, अभी लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड द फ्रैक्शंस रिटर्न इन द बॉक्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अभी इधर जो बॉक्स में हमने फ्रैक्शंस लिखे हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे हैं. विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन, 1/2 और 1/3. 1/2 और 1/3 कौन सा स्मॉल फ्रैक्शन है? हाँ, और 1/5 एंड 1/6 और 1/3 और 1/5. Which is the smaller fraction or which is the bigger fraction? Okay, so here write greater than or smaller than in the box given below. अभी देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, हाँ, 1/3 and 1/2. Which is the bigger fraction? Tell me, which is the big fraction? Look here, denominators are equal, है ना? न्यूमरेटर्स आर इक्वल है, न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉल इज द बिगर फ्रैक्शन. अभी इसमें से किसका न्यूमरेटर स्मॉल है? दिस वन, दैट मीन्स दिस इज द बिग फ्रैक्शन, बिगर फ्रैक्शन. हियर न्यूमरेटर इज इक्वल 1 1, हियर 3 and 4 है, डिनोमिनेटर इज 3 and हियर इज 4. सो हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉल इज अ बिगर फ्रैक्शन. अभी यहाँ पे 3 और 4, विच इज स्मॉल? इट इज 4, दैट मीन्स दिस वन इज अ स्मॉल फ्रैक्शन. हियर 5 and 3, न्यूमरेटर इक्वल और डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है. सो विच वन इज द स्मॉल? 3, दैट मीन्स दिस वन इज अ बिगर फ्रैक्शन. हियर 2 is a small, that means this one is a bigger fraction. Here 3 and 4, sorry, this one is a bigger fraction. Here this one is a bigger fraction and here this one is a bigger fraction. Look here, क्या है यहाँ, इसमें क्या दिखाई दिया आपको? As the denominator of the fractions with numerator 1 keep increasing, that happens to be the value of the fraction. Which is the fraction, smaller fraction, 1/6 or 1/9? Which is small? That is 1/9 is a small fraction. Understand?
फिल इन द ब्लैक्स, इधर आपको वही लिखना है। 1/3, 1/2, 1/3 से 1/4, ये बिग है, ये स्मॉल है, लाइक दिस। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉल, दैट इज द बिगर फ्रैक्शन। ओके, अंडरस्टैंड? 1/8, 1/10 देखिए, सबका न्यूमरेटर क्या है? 1 है, बट डिनोमिनेटर चेंज है, तो डू हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉल इज अ बिगर फ्रैक्शन। बिगर मतलब ये बिग साइड है, वो उस तरफ होनी चाहिए। हियर 5 and 3, दैट इज 3 is a bigger fraction. Here 1/4 and 1/2, that is 1/2 is a bigger fraction. Here 1/3 and 1/3 equal, that means this is a equal. Here 1/15 and 1/20, 15 is small, that means 1/15 is a bigger fraction. Here 1/20 and 1/15, 1/15 is a bigger fraction. Whose denominator is small is a bigger fraction. Okay, you have a fruit. Using the fruit, how will you explain to your friend that 1/4 or 1/2 is a, that 1/2 is a big? कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फ्रूट है, हाँ, ओके। 1/4 मीन्स क्या? Out of 4 part, 1 part. And 1/2 means what? Only 2 part. Okay, तो अभी tell me which one is the bigger, this one or this one? That means this is the big part. Okay, that means 1/2 is a bigger part. Understand? यहाँ पे भी देखो आप, है ना, ये 1/4 है, यहाँ पे क्या दिया है? 1/4 and 1/2। देखो स्ट्रिप्स तो वही है, यहाँ पे हमने ट्रिप्स के 2 पार्ट्स किए, और यहाँ पे ट्रिप्स के 4 पार्ट है, 1 2 3 4। 4 में से 1 पार्ट, 2 में से 1 पार्ट, विच इज़ बिगर? ये कि ये कौन सा बिग है? दिस वन। अंडरस्टैंड? समझ में आया? सो कौन सा बड़ा है? 1/2, और ये है 1/4। समझ में आया? ये पार्ट छोटा दिख रहा है आपको, और ये है बिगर पार्ट। दैट मीन्स व्हाट? द रूल इज दैट कि हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉल इज अ बिग। अभी दूसरा भी देखो, ये समझो 1/5। हियर यहीं पे देखो आप, 1/3 एंड 1/2। देखो ये 1/3 है, ये 1/2 है। अभी देखो कौन सा कलर शेडेड पार्ट बड़ा दिख रहा है, बिगर दिख रहा है, सो 1/2 है ना। सो दैट मीन्स 1/3 एंड 1/2 में से 1/2 इज अ बिगर। समझ में आ रहा है? सेकेंड है 1/3 एंड 1/4। 1/3, 1/4। देखो 1/3 बिगर है, बड़ा पार्ट है, कंपेयर टू 1/4, है ना। समझ में आया? हाँ, ओके, लाइक दिस यू कैन कंपेयर द फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पे रूल क्या है? इफ द न्यूमरेटर इज इक्वल, न्यूमरेटर सबका एक है, तो आपको किसको कंपेयर करना है? बस डिनोमिनेटर। हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉल इज अ बिगर फ्रैक्शन। जिसका भी डिनोमिनेटर स्मॉल है, वो वाला फ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा होता है, बिगर होता है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लुक हियर, फ्रैक्शन रिलेटेड टू सेट्स। Okay, fraction related to sets. Look here, this picture. Here in this picture there is a set of 4 candles. Okay, it has been divided into 2 equal parts. Okay, and one part has been colored. इसमें से 4 आपके पास सेट ऑफ 4 कैंडल है, इसमें से 2 कैंडल्स क्या है? कलर्ड है, दैट इज 1/2। हाँ, 2 पार्ट में से 2 पार्ट्स किए, 2 का एक पार्ट है, 2 आउट ऑफ 1 पार्ट इज कलर्ड, है ना। That means 1/2 of 4 is 2. Okay, this is a set of 8. Look here, here is the set of marbles. This is the set of 8 marbles. लेकिन it has been divided into 4 equal parts. देखो 4 equal parts किया आपने। One of the part is colored. इसमें से 1 part colored है. That means what? 1 2 3 4 out of 4 part 1 part is colored, है ना। Out of 4 part 1 part is colored, है ना। That is 1/4 of part has been colored. That means 1/4 of 8 is 2.
है ना, 1/2। इसका अगर 1/4 ऑफ 8 इज 2। अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पे वही करना है। यहाँ पे क्या दिया है, सर्कल द पोर्शन ऑफ द सेट इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, सर्कल द proportion of the set equal to the given fraction। यहाँ पे क्या करना है, 1/2, तो आपको क्या करना है, एक पार्ट को सर्कल करना है, 2 में से आउट ऑफ 2 1 पार्ट। हियर 2/3 मतलब क्या, जो भी हमारे पास लीव्स है उसके इक्वल 3 पार्ट करना है। कितने इक्वल पार्ट करना है, 3। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का एक सेट बना सकते हैं, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ओके, 3 पार्ट है, 2/3। इसका मतलब क्या है, 3 पार्ट में से 2 पार्ट। तो ये 2 पार्ट हो गए, 1 एंड 2। अंडरस्टैंड। ओके, समझ में आया। यहाँ पे 3/4 मतलब क्या, जो भी आपके पास बॉल दिए उसके कितने इक्वल पार्ट करना है, 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, दैट मीन्स 1 2 3 4। दैट मीन्स एक बॉक्स में कितने बॉल आते हैं, 2 बॉल्स। 2 बॉल्स का हम लोग एक सेट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। आउट ऑफ 4 पार्ट 3 पार्ट्स। ये 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट में से 3 पार्ट्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक। आउट ऑफ 4 पार्ट मतलब कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया। वैसे यहाँ पे भी ये इधर आपको लिखना है 1/2 ऑफ 2, है ना। 1/2 ऑफ 2 इज 1 आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2/3 ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू कितने, 2 पार्ट्स। 2 पार्ट है, 1 2 3 4। ओके, हियर 3/4 पार्ट किए हमने, इसमें से 3/4 ऑफ कितने बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने पार्ट आते हैं, इसमें से 3 पार्ट्स कितने आते हैं, ये ना 1 2 3 4 5 6। ओके, सॉरी, हियर 2/4 मतलब 1 2 3 4 ऑलरेडी है, इसमें से 2 पार्ट का बंच, 2 का। ओके, दैट मीन्स 2/4 ऑफ हाउ मेनी, 1 2 3 4 इज इक्वल टू कितने बॉक्स को सर्कल किया हमने, 2। ओके, लाइक दिस। हियर 1/5 मतलब इसके इक्वल 5 पार्ट करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हम लोग 2 का बंच बनाएंगे, 4 एंड 5 बंच हो गए। सो 1/5 इज इक्वल टू कितना, 5 में से 1 पार्ट, दैट इज 2 ऑफ 10 है स्टार, दैट इज आंसर इज 2। हियर 1 2 3 4 5 आइसक्रीम है, आउट ऑफ 5 3, आउट ऑफ 5 3 आइसक्रीम। ओके, सो 3 आउट ऑफ 5 आइसक्रीम, है ना, दैट इज 3। ओके, समझ में आया। देखो आपको समझ में आता है कि नहीं, एक बार फिर से लर्न करो, फिर मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ओके।